Good morning. I am Dr. Anil Tyagi. You all doctors are welcome to the channel, The Passionate Fighter for Freedom Optometry India. Today, discussion topic is how optometrist services are not regulated and what is the consequences in the absence of regulations. The profession is being ruled out is misled among the public. You know, in India, optometry is not regulated. Opticianry, a discipline not exists in India. All the opticians are traders without the qualification. They open the shop, they prescribe, and he will also dispense in the classes. The patient who comes in their shops, he understood that the examination person who examines the eyes is the qualified doctor or optometrist. Thus, they are misleading by these quacks. Without the qualification, they open the shops and practicing as an optometrist. The G News channel had a sting operations. All few optician shops, their respondent visited their shops and they treated and examined by the unqualified professionals, and they claim themselves as a optometrist. The topic is there. Our services are prescriber. Only two professionals are prescriber. One is ophthalmology professions and second is optometry professionals are authority to prescribe the prescription of glass, visual aids, low visual aids and other minor eye elements treatments. You know, surgical part is related to the ophthalmology services. The sting operations is run out our services, run out our status, run out our professions because there is no law. There is no law in the optometry. Unfortunately, the law is enacted 2021 under National Commission Allied Healthcare Professions Act. It diluted under the ophthalmic science. You have to understand, if the optometrist service is not regulated, your profession is not regulated, so you will be treated as a quacks. You will be treated as an unqualified persons, and your name or your status is being ruined out, damaged, tarnished by the unqualified persons. Those claim themselves they are qualified optometrists. You just watch the video, you just watch the panelist, those giving their opinions on the optometrist, ophthalmologist, doctor, opticians. Now you have to understand what we are losing, what our profession is not established its due respect. Please watch this video, and after that the video we can discuss. And you know very well, DO is going to file the PIL in the Honorable Supreme Court to restore the glory of optometry under the National Act. And we are continuing touch with our Supreme Court lawyers team, and they demanded lots of documents were supplied. The team of Supreme Court lawyers working day and night. Very soon we will get a positive results. Please watch this video, and video is self-explanatory.
what our professionals are being misled, misinterpreted, and their services is not getting the respect as it dues. Please go. इसके बाद हमारे संवाददाता दिल्ली के वसंत कुंज के प्रोमिनाज मॉल के दयाल ऑप्टिकल्स गए। यहाँ जब हमारे संवाददाता की आंख चेक की गई तो परिणाम दोनों से अलग था। यहाँ हमें बताया गया कि हमारे संवाददाता की दाहिनी आंख में 0.50 स्फेरिकल और बाईं आंख में 0.50 सिलेंड्रिकल और 0.25 स्फेरिकल पावर है और चश्मे की सख्त जरूरत है। कुछ भी स्पेक्टिकल्स की जरूरत है सिंपली लेफ्ट में 25 है 50 सिलेंड्रिकल है और 90 क्या है देखो सिलेंड्रिकल पावर होगी उसके एक्सेस 0.5 दयाल ऑप्टिकल्स की सलाह हमें काफी परेशान कर रही थी। इससे पहले की गई 2 रिपोर्ट्स और दयाल की रिपोर्ट सब अलग अलग नंबर बता रही थी। अब सवाल ये था कि एक आंख के 3 अलग अलग नंबर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमने सबसे भरोसेमंद चश्मे के ब्रांड में से एक टाइटन आई प्लस के शोरूम में जाने का फैसला किया। जब हमारे संवाददाता साकेत के सिलेक्ट सिटी DLF मॉल गए जहां टाइटन आई प्लस के शोरूम में आंख दिखाई तो और कुछ ही कहानी सामने आ गए। टाइटन के आउटलेट में दाहिनी आंख का नंबर 0.50 सिलेंड्रिकल आया तो बाईं आंख का नंबर 0.25 स्फेरिकल आया। ठीक है सर, जो आपकी पावर है आपके पावर के हिसाब से कॉन्टेक्ट लेंस एडवाइजेबल नहीं होंगे। आपका पावर इतना नहीं है कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस लगा सके। आपका माइनस पावर है तो इसके लिए आप स्पेक्स ही लगाइएगा। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहते हैं तो आप कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं 0 पावर में। तो 0 पावर में फिर लगा के क्या करूंगा लेंस को? वो कलर्ड के लिए आप लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कलर्ड लेंस आप आर्टिफिशियल लगाना चाहते हैं। अच्छा, आपने जो रेड एंड ब्लू का जो किया उसमें क्या डिफॉल्ट? ये उसका जो होता है डुक्रोन टेस्ट उसको हम बोलते हैं। हाँ, डुक्रोन टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपको जो नंबर दिया गया है ये नंबर आपको कोई ज्यादा तो नहीं दे दिया या नंबर आपका कम नहीं है, तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि आपका जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट है। वो टेस्ट होता है, उसको डुक्रोन टेस्ट हम बोलते हैं। ठीक है सर। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर नंबर कौन सा सही है, किसकी रिपोर्ट सही है। बहरहाल अलग अलग रिपोर्ट की उलझन दूर करने के लिए हमने हिंदुस्तान के सबसे भरोसेमंद अस्पताल एम्स जाने का फैसला किया। एम्स में जब हमारे संवाददाता ने अपनी आंख दिखाई तो साफ हो गया कि आंखें बिल्कुल सही हैं और किसी नंबर के चश्मे की जरूरत नहीं है। नहीं, कभी कभार तो मैं घर से दिखाने आया क्योंकि 2-3 जगह बाहर दिखाया, सबने बोला पावर हो गया, ये हो गया, किसी ने 0.5 सिलेंड्रिकल क्या क्या बोल दिया। आपका नजर तो सही है ना, आप देखते हो तो कुछ दुनिया दिखाई देता है, दुनिया दिखाई देता है। फिर इस वजह से मैं यहाँ आया क्योंकि बाहर इन लोगों ने ठीक है, अगर सर में दर्द ज़्यादा हो हाँ एक TCL टैबलेट्स रहते हैं $650 mg, तब यूज़ कर लेना है। ठीक है। और अगर आपको फिर भी आँख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर भी एक बार हेडेक के लिए मेडिसिन ओपीडी में एक बार दिखाना, उनकी तरफ से कुछ है क्या नहीं। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, थैंक यू। अब सवाल ये है कि प्राइवेट आई टेस्टिंग सेंटर रिपोर्ट अलग अलग क्यों दे रहे हैं। क्या आम लोग प्राइवेट आई टेस्टिंग सेंटर पर गलत रिपोर्ट के आधार पर बेवजह चश्मा पहन रहे हैं? क्या इनको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? क्या स्कैनिंग मशीन की बजाय किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से आई टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए? आंखें हर इंसान की बेशकीमती अंग होती हैं। हम और आप सब चाहते हैं कि आंखें हमारी और आपकी जिंदगी की आखिरी सांसों तक महफूज रहे, लेकिन महज कुछ रुपयों की लालच में जब
कोई आपकी और हमारी आंखों के साथ छेड़छाड़ करता है तो दुख होता है। दुख उन महकमों के ऊपर भी होता है जिन्हें इसके लिए निगहबानी करनी थी। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो सुना आपने कैसे टाइटन नाइट प्लस और दयाल ऑप्टिकल्स के भी शोरूम्स में जब वो गए वहां भी अलग अलग नंबर्स आए। मेरे साथ जगदीश प्रसाद, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिस्टर प्रसाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आंखों को लेकर जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं आई टेस्टिंग की सर, वो हमने दिखाई हैं सर, इस पर आपका पहला रिएक्शन? आम जनता को देखिए, पहली बात है कि चश्मे की दुकान में जाकर के अपना आंख टेस्ट नहीं करानी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम, डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं, तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में जाएं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक करवाएं, क्योंकि जब तक रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा तो चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक कि आँख की दिखाई की बात है, डिफेक्टिव होना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, रेटिना में प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोकोमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चश्मे की दुकान में जाना ही लोगों के लिए गलत है कि वहाँ पर जाकर के अपना बात करें कि चश्मा मुझे चाहिए। उन्हें जाना नहीं चाहिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ग्लास लेने की हम राय देंगे। नहीं सर, यहाँ पर तो सवाल फिर उठ जाता है कि फिर वो कैसे, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियंस कैसे लोगों की जांच कर रहे हैं? दुकान वाले या चश्मे बनाने वाले जो रिटेलर कितना सही काम कर रहे हैं, वो कितना सही है? ये बात गलत है। अगर इस तरह से जो आप बता रहे हैं और चश्मे वाले दुकान इस तरह से कर रहे हैं जिसमें चश्मे की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत ही गलत है। इनके खिलाफ है गवर्नमेंट को, सरकार को, जो राज्य सरकार है उनको एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर जे.एस. तेतियाल, हेड आई बैंक एम्स भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर तेतियाल, किसी हेल्दी आई के लिए चश्मे की जरूरत कब होती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो ऐसा है, आँख तो एक कैमरे की तरह काम करता है। तो इसमें आँख के अंदर ऐसे शारीरिक रूप में ऐसे लेंसेज बने होते हैं जो लाइट रेज को आँख के रेटिना में फोकस कर देते हैं, जो ब्रेन में जाके इमेज बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो कैमरा सिस्टम बॉडी की है 100% परफेक्ट नहीं बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी मनुष्य पैदा होता है तो उसकी आंखें परफेक्ट कभी नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर होता है, और धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होते जाता है तो पावर कम होते चले जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अराउंड 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र के बच्चे की जो है 99.9% जो है ग्रोथ पूरी हो जाती है। लेकिन हमेशा जो है देखा जाए तो आँख जो है हेल्दी आई जो है उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की आँख में ऐसे अकोमोडेटिव पावर है जो दूर का, पास का, पूरे रिपोर्ट दिखाई सिंगल से भी जो ये भगवान ने एक क्षमता बनाई हुई है। चश्मे की जरूरत जो है मनुष्य को तब पड़ती है जब उसको दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, या पढ़ते समय उसको दिक्कत हो रही है, या फिर आपको जब पास का काम कर रहे हैं तो करते करते आपके आंखों में दर्द होने लगे या सर में दर्द होने लगे। तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपकी आंख का जो करेक्शन है वो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे में चश्मे के नंबर का टेस्ट कराना चाहिए। यदि नंबर है, यदि उससे आपकी नजर बढ़ती है तो चश्मा लगाना चाहिए। नहीं डॉक्टर तेतियाल, जो आप बात कह रहे हैं चश्मे की जरूरत है, तो फिर सवाल है कि टेस्टिंग कहाँ करानी चाहिए सर? बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई भी नंबर बना होता है उठा के पहनना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं किसी आदमी के लिए। प्रॉपर चश्मे का नंबर टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि या तो क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या फिर क्वालिफाइड एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो। 2 जगह है जहां इसका नंबर टेस्ट कराना चाहिए। यदि बच्चा है तो उसमें तो और भी इम्पोर्टेंट है कि सही नंबर टेस्ट किया जाए, कि बच्चों में आँख की जो अकोमोडेशन पावर होती है बहुत ज्यादा होती है, वो -6 +6 तक भी अकोमोडेट कर सकता है। तो ऐसे में पहले दवाई डाल के टेस्ट करनी चाहिए, जिसको हम साइक्लोप्लेजिक बोलते हैं। उसके द्वारा जो है पूरा आँख का जितना एरर है पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब दवाई का असर खत्म हो जाता है तब एक्चुअली नंबर निकालते हैं, दोनों प्लस माइनस करके। तो ये पहली बार कोई आदमी चश्मे के लिए जा रहा है, यदि उसकी दृष्टि में दोष है तो ऐसे में प्रॉपर नंबर निकालना बहुत जरूरी है। यदि आपको माइनस का नंबर है तो उसमें कभी कभी जब आदमी 15 साल से बड़ा हो जाता है तो उसमें दवाई नहीं डालने की जरूरत पड़ती है। यदि आपका प्लस पावर है आंख में, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उसमें हमेशा साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन या दवाई डाल के रिफ्रैक्शन करना बहुत ही जरूरी है।
आप देखेंगे कि बड़े सारे ऐसे जगह ऑप्टोमेट्रिस्ट है, आजकल देखेंगे बड़े सारे सेंटर है जैसे कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग कहते हैं। तो कभी कभी ये कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग जो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हर मशीन में आपको दूसरा नंबर मिल सकता है, यदि नंबर सही नहीं मिला तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि लोग जो है कंप्यूटर टेस्ट में जरूर कराएं, लेकिन साथ में एक मैनुअल टेस्टिंग जो ऑप्टोमेट्रिस्ट। सर सबसे बड़ी बात, नंबर सही नहीं मिला तो आंखों में दिक्कत आ सकती है, जो आप कह रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार होगा? वो ऑप्टोमेट्रिस्ट, वो दुकान, वो शोरूम, या वो आदमी जिसको पता ही नहीं है कि वो जाए तो किससे पूछे कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ज्ञानंद सिंह, मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ बताइए, क्या यहाँ पर करना चाहिए एक पेशेंट को, और क्या जिम्मेदारी है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट या एक शोरूम की जब वो लोगों से कहते हैं कि भाई हम आपकी आई टेस्ट करेंगे और आपको सही पावर बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये गलत है। इसके लिए किसी लॉयर को बोलने की जरूरत नहीं है, न ही कोई डॉक्टर के बोलने से ये सही हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही डॉक्टर ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेजरमेंट में वेरिएशन होता है, इससे ड्यूटी ऑफ केयर और बढ़ जाता है। और जब पहली बार किसी पेशेंट के लिए आप चश्मा प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको ये बताना उसको जरूरी होता है कि आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपने ये नहीं बताया तो ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। अभी डॉक्टर महिपाल ने बताया कि डायलेट करना चाहिए प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर जानने के लिए। अगर ये नहीं किया गया तो ये अपने आप में प्रॉपर नेग्लिजेंस है, हाँ, और ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। ऐसे ऑप्टोमेट्रिस्ट अपने आप को बचा नहीं सकते। बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे बार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए। तो बिजॉन मिश्रा, बीइंग अ पेशेंट या बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम जब मार्केट में किसी के शोरूम में जाते हैं तो क्या हम कभी उससे पूछते हैं कि भाई आप अपना क्वालिफिकेशन लेटर दिखाइए, डिग्री दिखाइए, या आपने कहाँ से डिग्री ली है? कैसे एक ऐसे कहाँ होता है? पहले तो हम आप लोगों के टीम में, गौरव, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू और आपकी टीम को कि ये जो शो आप लाए हैं ना, इससे कितनी जागरूकता पैदा होगा, लोगों में एक शिक्षा आएगा। ये एक्चुअली सरकार, डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी हम लोग के साथ हैं, सरकार को इस ढंग का अभियान लाना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे इस बात को कि आप जब कोई भी ऑप्टिमिस्टिक के पास जाते हो, आप कैसे वेरीफाई करोगे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कहां आप उनके पास जा सकते हो और कहां आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ये शिक्षा दिलाना ये सरकार का काम है। ये सरकार को लेना होगा जिम्मेदारी। और ये अच्छा लगा आपने शो में डॉक्टर जगदीश प्रसाद को ले आए। डॉक्टर जगदीश प्रसाद से तो मैं सवाल पूछूंगा। सवाल यहाँ पर डॉक्टर के अग्रवाल आपसे भी, फिर मैं उन स्टोर जो जिनके हमने बात की है उनमें से कुछ स्टोर्स के रिएक्शन भी हमने उनका वर्जन भी लिया है, वो रिएक्शन भी हम दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, सवाल यहाँ पर यह है कि एक आम आदमी जिसको इतनी टेक्निकलिटीज पता नहीं है, जिसको इतनी जानकारी है नहीं, और वो बड़े बड़े बोर्ड्स और बड़े बड़े दावे देखकर चला जाता है कि आंखों की जांच हमारे यहाँ होती है, कंप्यूटर से जांच कराइए, हमारे यहाँ चश्मे बनते हैं और बड़ी बड़ी चीजें, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाला सही है या नहीं है? ऐसे में उस स्टोर मालिक की या उस ऑप्टोमेट्रिस्ट की क्या जिम्मेदारी बन जाती है सर? डेफिनेटली फर्स्ट टाइम अगर कोई भी आदमी को चश्मा दिया जा रहा है, यू नीड ए डॉक्टर टू सी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू सी। ज्यादातर ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं, ये बड़ा क्लियर है। वी डोंट रिकमेंड कि आप डायरेक्टली सीधा ऑप्टोमेट्रिस्ट दुकान भी जाके अपना चश्मे का नंबर ले लें। इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि फर्स्ट टाइम, हाँ, अगर आपको ऑलरेडी आपका चश्मा है, चल कैसे रहे सर? इतना बड़ा ट्रेड है ये, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए ऐसे लोग मिल जाएंगे, ये चल फिर कैसे रहे? प्रोबेबली चल इसीलिए रहे हैं क्योंकि नंबर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कम है और सेंटर्स कम है, लेकिन रेगुलेशन की जरूरत है। नहीं सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी को कुछ भी करने देंगे। ज्ञानंद सिंह पूछना चाह रहे हैं। इसमें कानून में खामी है। आज के डेट में अगर एक दुकान में अगर 1 लाख लोग जाते हैं या 10,000 लोग जाते हैं, उसमें से 2 लोग अगर कंप्लेंट करके कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं तो सिर्फ उनको कंपेंसेशन मिलता है। क्लास एक्शन का अभी कोई प्रावधान नहीं है। अभी जो कानून आ रहा है उसमें सरकार ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है जो कि क्लास एक्शन इंटरवेंशंस करेगी, और जिसके बाद ऐसे जो लोग हैं जहां ऐसी व्यवस्था है उस पे ये काबू पाया जा सकेगा। अदरवाइज ये जो आपने बताया
कि वो कंज्यूमर कैसे जाके दुकान में पूछे कि आपके पास क्या डिग्री है, ये पूछने की जरूरत नहीं है। उस दुकान वाले की ड्यूटी है, अगर वो नहीं बताता है तो वो नेग्लिजेंस है, अपने आप में वो लायबल है। ठीक है, मैं संतोष आपके पास आऊंगा, महिपाल जी आपके पास आऊंगा, विकास आपसे भी सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले रिएक्शन दिखा देते हैं कि हमने जब संबंधित स्टोर्स मालिकों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उनका क्या कहना था, अब आपको ये सुनवाते हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। इसका मतलब एम्स ने भी जो ट्रीटमेंट किया वो गलत किया। मैं किसी की नहीं कह सकता किसने क्या किया है, क्योंकि 0.25 को बहुत लोग होते हैं इग्नोर कर देते हैं। वो डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, मेडिसिन से भी हो जाता है ठीक। 0.25 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मेडिसिन तो उन्होंने दिया ही नहीं, वो दर्द के लिए दिया है जो मेडिसिन दिया, बोला वो कभी जब दर्द हो तो आप ये मेडिसिन खा ले। बहुत लोग होते हैं कि होता है हमारा नंबर की वजह से, हेडेक होता है नंबर की वजह से। चलो आप आर्गुमेंट करोगे कोई नहीं, आपने लेकिन आप ये कह रहे हो, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की भी आंख का सौदा ऐसे नहीं करो। 200 रुपए बच जाएंगे, 400 रुपए ऐसे मत करो। बहुत अच्छी बात करो कि जो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ खिलवाड़ करने के लिए बैठे हैं, उससे सेफ्टी ये तो नहीं बैठे हुए, वो तो आप सेफ्टी, लेकिन आप तो डरा के उसको जबरदस्ती का थोप रहे हो सर। चलो मतलब आप लोग ऐसे ही करेंगे? हम ऐसे ही करते हैं सर। अभी हमारे यहाँ तीसरा जो हम तो नॉर्मल जैसे टेस्टिंग करते हैं वैसे ही तो करते हैं टेस्टिंग। हम कोई बेचने के लिए थोड़ी आपके आइज के लिए किसी का नंबर दे देते हैं। वी हैव ए क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हियर, ऐसे थोड़ी कोई रोड साइड पर बैठे हुए हैं बेचने के लिए हम कुछ भी देंगे। काफी वेरी कर रहा है सर आपका, तो क्या करेंगे बताइए। मैं कह रहा हूँ ना तीसरी जगह और जाइए आप। अच्छा, तो वहाँ पे देखिए क्या ओपिनियन आता है। ठीक है, इसका जवाब मेरा ये कहना है, क्योंकि आंखें देखिए किसी की भी प्रेशियस होती है, आपके लिए भी उतनी प्रेशियस है, मेरे लिए भी उतनी है। किसी की आंख के साथ इस तरीके से हो सकता है एक फ्रेम बेचने से आपको कुछ फायदा। पीपल है, हम कोई ऐसे नहीं है, वी आर ऑल क्वालिफाइड पीपल है, हम ऐसे नहीं करते हैं यहाँ पे मैं खड़े होकर। वी आर फ्रॉम लास्ट 50 ईयर, मोर देन 50 ईयर्स। देखिए पहली बात तो ये, अगर आपने यहाँ पे टेस्ट कराया, यहाँ पे फ्री आई टेस्टिंग है, फ्री टेस्टिंग देखिए कुछ ठीक है मैंने, लेकिन ये कराया कि नहीं कराया आपके यहाँ का ये देखो चेक कर लो अपने रिकॉर्ड में सर, हमारे नाम पे होगा। ये हमारे रिकॉर्ड में होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अगर आप क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं सर, ठीक है, और वहाँ पे जो आपके डॉक्टर सर्जन होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने आपको जो 0.25 कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, ये आपको कोई दे भी सकता है, कोई नहीं भी दे सकता सर। तो उन्होंने आपको डर जाते हैं ना यार, जैसे हम तो एक नॉर्मल इंसान है, हम डर जाते हैं कि हमारे आंखों में चश्मा लग गया। आपको उन्होंने ये भी बताया होगा 0.25 है, ये नेग्लिजिबल होता है सर, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्पेक्स लगाना ही लगाना। आप लोग तो बोल रहे हैं, उस दिन की बोला मुझे कि आपको फ्रेम चेक किया, लेकिन मैंने कहा कि आपको बताने के लिए मैं आया कि देखो जी ऐसा है, नहीं तो मुझे, मैं जितनी दूर से आया, मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी। आज वक्त छुट्टी का दिन है, आप आए, मैं कुछ बात करता हूँ मेरे से, उन्होंने चेक किया ना वहाँ आपने अगर 3 घंटे लगाए तो मैं तो आपसे सिर्फ 5 मिनट मांगा। अब कोई क्या यार, जब मैंने दिखाया इसके डर की वजह से मैंने वहाँ गया, अदरवाइज मैं नहीं जाता। कार्ड अभी भी आपके पास है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको नंबर लगा के दिखाऊंगा। चलो, अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ चेंजेस है नहीं, मैं बस ये रिक्वेस्ट करने आया कि ऐसा नहीं करना आप दोस्त। मैं छुट्टी के दिन इनको बताने के लिए आया, मैं आपको नहीं बोलने जा रहा हूँ, आपको शिकायत नहीं। छुट्टी के दिन आप मैंने आपको बताया था, मैंने 4 बार कंफर्म किया है आपसे, ठीक है, और मैंने प्रॉपर्ली आपको शायद 10 मिनट दिए, मैंने उससे बिल्कुल बात करी आपसे। ये हो सकता है कि लेकिन वहाँ पे दिखाया है बहुत अच्छा है कि कुछ नहीं, बट अगर आप 2 मिनट देंगे तो। टाइटन आई प्लस की तरफ से पूरे मामले पर खेद जताया गया है और कंपनी का कहना है कि टेस्टिंग में गड़बड़ी की संभावना नहीं के बराबर रहती है। हालांकि ऑप्टिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि विकास बारिया को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। तो अब सवाल यह है कि कौन गलत है यहाँ पर, ऑप्टिमेट्रिस्ट, वो शोरूम मालिक, वो कंपनी, या फिर वो आम आदमी भी जिसको जानकारी नहीं है। महिपाल सिंह साहब, आपका कहना था कि 0.25 या 0.5 किसी की आंख में भी हो सकता है और ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर, लेकिन अगर इसको यही चीज वो ऑप्टिमेट्रिस्ट या वो शोरूम मालिक क्यों नहीं कहता उस आदमी को, वो डरा कर उसको क्यों महंगे महंगे फ्रेम और चश्मे देता है? देखिए, पहली बात ये है कि हमको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, लेट अस नॉट कंडेम a professional
इन एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व अदा कर रहे हैं। सर, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड, हाँ। आप जरा बोलने का समय दीजिए। बोलिए। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो आज की तारीख में जितने लोग अंधापन के शिकार हैं, देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन कि फॉर एवरी वन चाइल्ड हु वेयर्स ग्लासेस there is another child who does not know that he or she needs glasses. Okay. So there are a lot of people who have visual handicap just because they are not given glasses. Okay. So let us not condemn a qualified paramedical staff. Okay, that is first thing, that optometry is a legal branch. एक चीज क्लियर कर दें, हम कुछ किसी प्रोफेशन को कंडेम नहीं कर रहे, हम किसी टेक्निकल या किसी भी हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव को कंडेम नहीं कर रहे, हम बस उन ब्लैक शीप्स की बात कर रहे हैं जो इस पेशे में है। एक सेकंड, ब्लैक शीप की जो बात आ रही है, आपको एक दूसरी चीज समझनी चाहिए कि जो आंख होती है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। आंख जो है वो नजदीक भी देख सकती है, दूर भी देख सकती है। अगर आप वेव फ्रंट एनालिसिस करें आंख का, तो जो वेव फ्रंट डिफॉर्मेशन आई की आती है, इफ यू आर लुकिंग फॉर नियर एंड फॉर डिस्टेंस, द नंबर डिफरेंस कैन बी एज हाई एज 3, 4, 5 डायोप्टर्स। आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आप डिफेंड कर रहे हैं। आप सी, यू आर नॉट गोइंग ऑन साइंटिफिक बेसिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज रॉन्ग दैट द नंबर शुड बी डिफरेंट, बट व्हाट डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैज सेड, व्हाट डॉक्टर के अग्रवाल हैज सेड, एंड व्हाट डॉक्टर टिटियाल हैज सेड is that when you are going for the first eye checkup, you should ideally have an ophthalmologist see. But that does not mean that the number cannot be different. सर, मैं आपकी बात मानता हूं, नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप जितने अच्छे तरीके से यहाँ इस शो में बता रहे हैं, ये चीज उस शोरूम में वो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्यों नहीं बताता कि भाई आपकी आंख में इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप चश्मा नहीं खरीदेंगे तो भी चल जाएगा। वो तो डरा रहे हैं सर। संतोष बताइए आपको क्या कहा गया इन शोरूम में, क्या कहा गया? ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा बोला जा रहा है कि आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि क्या मैं एक आम आदमी की तरीके से गया आपके पास, आपके शोरूम में, मैं कितने चश्मे खरीदूं? मैं 4 दुकान गया, मैं क्या 4 चश्मे खरीदूं? और 4 चश्मे को मैं कब पहनूं, ये बता दीजिए। एक आम आदमी के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आम आदमी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 4 दुकानों में जाए और 4 जगह पैसे खर्च करके अपनी आंख चेक कराए। क्या आप मानते नहीं है कि ये गलत है? आप डिफेंड जरूर करिए, आप अपने पैसे को जरूर डिफेंड करिए, लेकिन एक आम आदमी के रूप में क्या गलत नहीं हुई? Optometrist, first thing is I am not an optometrist and I am not defending the पेशा. All that I am trying to say, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, I am a qualified ophthalmologist and I have served 20 years in All India Institute of Medical Sciences. It is not that Dr. Titial has been junior to me there. It is not कि मुझे मालूम नहीं है कि All India Institute में क्या होता है या क्या नहीं होता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक पेशा जो ऑप्टोमेट्री का है, उसके अंदर 0.25 का नंबर जो है वो वी रेस्पेक्ट दैट, ये हम बात मानते हैं आपकी। आप पॉइंट नहीं समझ रहे। पॉइंट ये है कि ये चीज जो आप बता रहे हैं वो वहां नहीं बताया जा रहा। मान लिया मैंने, जो बताया है, डॉक्टर महिपाल ने कहा है, ये नेग्लिजेंस प्रूव करती है। अगर ये बोल रहे हैं इतना वेरिएशन होता है, अगर वहां उनको पेशेंट को नहीं बताया गया तो अपने आप में ये नेग्लिजेंस। विजय मिश्रा हम ये बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर टिटियाल ने जो चीज बताया है वो उपभोक्ताओं को, पेशेंट्स को जरूर बताना चाहिए कि योर आईज लाइक अ कैमरा, वो एडजस्ट करते हैं। You see, आप यदि देखो, उन्होंने जो मैसेज दिया वो अच्छी चीज बता रहे हैं विजय मिश्रा। जो डॉक्टर जो महिपाल जी कह रहे हैं कि भाई आंखों में इतना वेरिएशन हो सकता है जब आप टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में वेरिएशन हो सकता है, नहीं मान लिया ये बात, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिर शोरूम्स में वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये कहता है कि भाई आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आपकी आंख खराब हो जाएंगी। विकास, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने भी ये फुटेज देखी है, मैं 1-2 जगह तो ये बोला गया है लगाने से इम्प्रूव हो सकता है। किसी ने भी एनफोर्स नहीं किया कि लगाना ही पड़ेगा। नहीं, एनफोर्स तो कर भी नहीं सकते, लेकिन वो डरा रहे हैं। नहीं, देखिए, खराब हो सकता है, देयर आर द एडवाइस इज सिम्पटम्स रिलेटेड आल्सो समटाइम्स। When you go with a problem and say that you have a headache or you have some strain while working on the computer, and उस टाइम आपका अगर थोड़ा सा नंबर निकलता है तो we presume that this possibly can cure it. You know, if you go and आप 2 बातें कह रहे हैं। देखिए, नहीं विकास, आप 2 बातें कह रहे हैं। आप एक कह रहे हैं कि आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ऐसे किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, और क्वालिफाइड डॉक्टर की बात माननी चाहिए। और ऑप्टोमेट्रिस्ट अगर नहीं, तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल भी कह रहे हैं अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट क्वालिफाइड है भी, ऑप्टोमेट्रिस्ट ये कह रहा है कि चश्मा लगाइए, डॉक्टर कह रहा है कि चश्मा मत लगाइए, तो किसकी बात मानेंगे? ये बताइए, एम्स की रिपोर्ट गलत है फिर? अब देखिए, गलत और सही की बात नहीं होती। अगेन द सेम थिंग इज हियर, इट इज सिम्टम डिपेंडेंट। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेन होता है, राइट, वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, और आपका थोड़ा सा नंबर आया, ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, इस पर डिपेंड करता है कि प्रिस्क्राइब करना है या नहीं करना है। सम इग्नोर इट एंड सम आस्क यू टू वेयर ग्लासेस एंड सी। कहीं कुछ गलत नजर नहीं आता इसमें? वेरिएशन अगर कहीं पे देखिए, अगर 5 जगह 0.25, 0.5, 0.75 5 जगह का टेस्ट हुआ है, उसमें से 3 सही हो सकते हैं। I'm not saying that all 4 जगह हुआ है और चारों अलग अलग। मैं कह रहा हूं 4 हुआ है। What is the maximum variation? Please tell me this. What is the maximum variation as far as the prescriptions that have been shown? See, I am not defending it, but what I am saying is that doctors, paramedical staff are soft targets. Okay. For anything. आप soft target नहीं आप एक मिनट, आप एक सर, हम आम आदमी की बात ना उठाएं तो भी सर आप एक बात बताएं, आप all that I am trying to say is आप एक दर्जी के पास जाते हैं, ठीक है, दर्जी आपका माप लेता है, ठीक है, कोई आदमी आपका जो शर्ट है वो मतलब कि उसका जो है आपका कॉलर का साइज या किसका साइज है 0.25 या 0.2 सेंटीमीटर का मतलब कोई फर्क आ सकता है, बताता है कि आपको कैसा चाहिए, वही मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट ही हैज सेड, वो बताता है क्या चाहिए एग्जैक्टली। जब आपका चश्मा जांच होता है तो जैसे मैंने फुटेज, एक मिनट, जब मैंने फुटेज भी देखी उसके अंदर शीशा लगाया गया है, उनसे पूछा गया है कि आपसे किससे ज्यादा सही दिखता है, आपसे पूछा गया है, ठीक है, और आपने एक दुकान में बोला है कि मेरे को इस चीज से सही दिखता है और दूसरी दुकान में बोला मेरे को इस चीज से सही दिखता है। दैट इज ह्यूमन ब्रेन्स डिफरेंस। ओके, दैट मींस दैट एट वन पर्टिकुलर टाइम यू मे से 0.25 इज गिविंग मी अ बेटर शो ऑफ द क्वालिटी ऑफ विजन, और एक में आप बोल रहे हैं कि 0.5 बेटर दे रहा है। So what I am just trying to tell you is that there is a subjective check that was also done for the patient, right? एक मिनट, ज्ञान सिंह, एक मिनट, संतोष आप बताइए। देखिए, यहाँ क्या ऐसा ही नहीं है, पूरे मामले के पीछे की जो कहानी है आप समझने की कोशिश करिए। हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्स का जो मार्केट है वो 50,000 करोड़ का है, और ये मार्केट जो है इसमें हर जगह पर आप 0.25 से लेकर 7.75 तक जो वेरिएशन है, इसमें आप डरा के आप फ्रेम बेचते हैं, और फ्रेम बेचने के लिए यहाँ पर ये सारे शोरूम फ्रेम बेचने के लिए लोगों को डराते हैं ताकि वो चश्मा खरीदें, और चश्मा जब खरीदेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, और इसमें सबकी मिली भगत होती है। यही हम कहना चाह रहे हैं। संतोष, एक बात और हम ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रोफेशन को यहाँ कंडेम नहीं कर रहे, किसी को हम ऐसा नहीं, किसी को बेइज्जत नहीं कर रहे कि भाई इस पेशे में ये हो रहा है, लेकिन ब्लैक शिप हर जगह होते हैं, और उन ब्लैक शिप्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। और हम किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट को यहाँ पे बदनाम नहीं कर रहे, और हम किसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम सवाल उनके ऊपर उठा रहे हैं जिनके बारे में हमारे पास सबूत है। विजय मिश्रा, आप क्या बोल रहे थे? इसी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग को एम्पावरमेंट करनी चाहिए पेशेंट्स को। पेशेंट आप जबरदस्ती मत बेचिए उसको, प्लीज, फॉर हेवन से। यदि उनको जरूरत नहीं है उनको प्लीज मत चश्मा पहनवाइए, लेकिन यदि जरूरत है तब जरूर पहनवाइए, लेकिन ये जरूरत आपको उस ढंग से लाना चाहिए कि वो क्रेडिबल हो, ऑनेस्ट हो, वो साइंटिफिक हो, और ये करने के लिए आपको एक पारदर्शिता लाना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, ताकि आप यदि जबरदस्ती किसी को बेच रहे हैं, और आप खुद ही बोले आज के शो में कि 50% लोग जिनको पहनना चाहिए उनको चश्मा नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं पहनना चाहिए उसको आप जबरदस्ती पहना रहे हो। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपका रिएक्शन देना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर अग्रवाल, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? जो बात महिपाल जी कह रहे हैं इस बात को मानते हैं कि ठीक है वेरिएशन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर महिपाल इसमें क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए इस ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरफ से, और एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, अगर आपको इससे ट्रायल होता है, अगर आपने सबसे पहली बार अगर आप आंख चेक कराने जा रहे हो, आपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लिया, आपको चश्मे का नंबर मिल गया, ऑप्टोमेट्रिक नंबर डिसाइड करेगा, उसने आपका नंबर बता दिया, उसके बाद में आपका चश्मा ट्राई करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसलिए कई बार आपको चश्मा दिया जाता है, फिर बोला जाता है कि अगर आपको कंफर्टेबल 1-2 दिन ट्राई करो, अगर नहीं हो तो कई बार नंबर बदला जाता है। तो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट सब्जेक्टिव है। पेशेंट बताएगा कि मेरे को चश्मे से जो दिख रहा है वो पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर दैट ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में मिलके वो नेसेसिटी है,
जिस तरीके से टेक्नीशियन एक पैथोलॉजिस्ट के साथ में नेसेसिटी है, उसी तरीके से रेडियोलॉजिस्ट और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या ये नेसेसिटी हर जगह ये नेसेसिटी फुलफिल हो रही है सर? आपको लगता है कि हर जगह ये हो रहा है? नहीं, ये एक अलग इशू है। एक मैसेज पब्लिक में ये नहीं जाना चाहिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात में हमें नहीं जाना, सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की। नहीं तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए सर? आप ये बताइए। जरूरी है। पहली बार उसके साथ चीट ना हो, उसको क्या करना चाहिए? चश्मा, अगर आपको चश्मे का नंबर लगा है और वो अगर आपको चश्मे का नंबर लगा है और आपको लग रहा है अनकंफर्टेबल है, तो जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेक कराइए, कोई और चीज मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है। महिपाल जी, समय कम है, आप बताएंगे एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नंबर का वेरिएशन हो सकता है। नंबर को आदमी को जबरदस्ती नहीं पहनवाना चाहिए। पेशेंट अगर आता है सिम्टम के साथ, अगर पेशेंट सिम्टम के साथ आता है तो उसको नंबर दिया जाता है। अगर इनको सिम्टम नहीं होते तो ये चश्मा चेक कराने नहीं जाते। द पॉइंट इज ही सिम्टोमेटिक, और सिलेंड्रिकल पावर सिम्टम का मेन कारण होता है, नॉट के मैं उसको पैरासिटामोल दूं। और नॉर्मली चश्मा जो है अगर सही नहीं बना तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, ऑप्टिशियन, वो बदल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शीशे को। ठीक है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बदल देते हैं, लेकिन चश्मा दे दिया जाता है। चश्मा दे दिया गया, यहाँ पर नहीं बदला जाता है। समय खत्म हो चुका है। एक मिनट ज्ञान सिंह, छोटा सा कमेंट, 10 सेकंड। देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि ये छोटा कमेंट मैं ये करूंगा कि ये गलत है, और इसको जो ड्यूटी है हमारे एज अ कंज्यूमर नहीं है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर उनके पास है। अगर उन्होंने हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया तो वो नेग्लिजेंट है। ठीक है, और वो है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। संतोष, लास्ट में आप फाइनल कमेंट आपसे। इसके बाद जब आपने रिपोर्ट बनाई, जब ये आपने रिपोर्ट की और जब दिखाया वहां पे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट को, तो उसमें कुछ कहा गया, एम्स के में कुछ और बोला गया इस पूरे रिपोर्ट में? देखिए, कुल मिलाकर एक चीज आप यहाँ समझना चाहिए कि मैंने जो स्टोरी की, ये लोगों की शिकायत थी, और उसी शिकायत के आधार पे आगे बढ़ते हुए हमने इन सबको एक्सपोज करने के लिए अगर हमने बताया कि हेडेक है, तो क्या उसमें आना चाहिए था कि हेडेक है, लेकिन उन्होंने समझा कि मुझे हेडेक है, उसके बाद उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। कुल मिलाकर हमने जब जो 4 सेंटरों की पड़ताल की, उनसे जब बातचीत की, उनके सेंटर पर जब जांच किया, तो उन सब की प्रतिक्रिया भी हमने ली है, और जिनमें से बॉन्टॉन से भी हमने ऑन कैमरा बात की, दूसरे बॉन्टॉन से भी ऑन कैमरा बात की है। जी हाँ, वो सब दिखाया। दयाल ऑप्टिकल से हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सके क्योंकि वहां पर अलाउड नहीं था हमारा कैमरा। वहीं साथ में टाइटन की तरफ से हमारे पास प्रतिक्रिया के तौर पर उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का रिएक्शन आया, जिसने खेद जताया। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चल रहा है वो गलत है। आम आदमी को आप वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप लोगों को डराइए मत। आप लोगों को ये मत कहिए कि भाई आपको चश्मा नहीं पहनेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। कुल मिलाकर यही हम भी आप खोलना चाहते थे लोगों की कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप एक सर्जन के, जैसे तमाम स्पेशलिस्ट ने इस पैनल में कहा कि सर्जन के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, और अगर आपको जबरदस्ती डराया जा रहा है तो आप उनसे उनकी क्वालिफिकेशन मांग सकते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए, आपने कहां से पास किया, आप क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं कि नहीं, और आपको मांगना चाहिए। इस पर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में आपको आगे भी रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। Thank you very much. You watched this video. The video is self-explanatory. What is the role of the optometry professionals, and what is the role of the opticians, and what is the role of the ophthalmologist? You know, in the absence of the law, opticians are not qualified as an optician because they are not having the opticianary qualification. They are authorized. After the qualification of opticianary, they will authorize to dispense the glasses, but they are prescribing. And some of the pupils, those are not having any optometry qualifications, and they are practicing as a dispenser, and they also claim themselves as a qualified optometrist. Because there is no demarcation line, how we can make the difference between the unqualified and qualified person? So you have to understand, if the optometry is not regulated, optometry professional is not regulated, so public will be deprived with the services of the optometry, and pupils not get benefit. Refractive errors cannot be corrected with the utilization of the optometry services directly, and lot of pupils comes under this unqualified professionals will come under this
unethical practice. And our Disconnected. Thank you. Bluetooth device is ready to pair.